Hello guys, this is Prashant Gautam. Today I am going to discuss a topic from ray optics, that is refraction of light. It is one of the prominent topics generally asked in competitive examination, the refraction of light. Before going into the detail of the topic, first I would like to introduce with the basic concept of refraction of light. What is refraction of light means? Actually, what happens in general practice is when a light passing from one medium to another, there is always a deviation of light from its original path. Such principle, such phenomena is called the refraction of light. This refraction of light is due to due to the fact that when a light passing from one medium to another, there is a change in the velocity of the light taken place, so due to which it differ its path from its original path. So generally what happens when an electromagnet, light is a kind of electromagnetic wave, as we all know, light is a electromagnetic wave. When a light passing from one medium to another, there is a frequency of the light remain constant. What? Due to the fact that its velocity changes, due to which the path covered by the light also changes. So generally what happens, there are two laws associated with the refraction of light, that when a light passing from rare medium to denser, the light bends towards the normal, or when light passing from denser to rare medium, light differs its path, that is from normal, that is away from the normal. Okay friends, so I will depict all the concept by showing on the whiteboard that how the refraction is being taken place. Okay friends, so what happens generally, let us suppose today's topic is refraction of light. So what happens, let us suppose there is air, okay, and there is an interface between air and another medium. This is medium 1, okay, this is another medium just below this medium, and it is separated by an interface. It is a common surface between both the medium, that is medium 2. This is medium 1 and this is medium 2. Let us suppose this is another medium, water. So what happens when a ray of light passing from one medium to another, and this is a line, this is an arbitrary line which is perpendicular to the surface, it is called normal. Okay friends, so whenever will be the angle, it is measured with respect to the normal. This angle is called angle of incidence. This is the incident ray, this is called incident ray. When this incident ray makes angle with this normal, this line is called normal. So as per the concept, if this medium and this medium is same, let us suppose अगर यहाँ पे मीडियम दूसरा हुआ होता तो ये इसी रास्ते को कवर करता, it will acquire its original path, okay, but due to different medium, so what will happen, this is dense rarer medium, this is denser medium, तो होगा क्या, ये ray of light आएगी, या तो ray of light इधर जाएगी या इधर जाएगी, मतलब it moves away from the normal और bends toward the normal, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब रेयर से जब म्यू की वैल्यू, इसकी म्यू होता है 1 और इसका म्यू होता है 1.33, ओके, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों एयर का 1 होता है, ये मिनिमम होता है, and the refractive index for water is 1.33. So this medium is rarer with respect to this medium, so this is denser medium, relatively denser medium as compared to this medium. तो क्या होगा, this incident ray coming from this medium, when it passing into the another medium, it bends toward the normal. So this angle is measured with normal. This is called refraction angle. Okay दोस्तों, or when the light passing from denser to rarer medium, let us suppose another case, it moves away from the normal. Let us suppose
water to air. So this is I and this is R. So it bends toward. So this is denser medium and this become rarer medium. So there are two important things. When a light passing from denser to rarer medium, it bends away from the normal, or when the light passing from rare to denser medium, it bends toward the normal. This is called the refraction of light. So what is generally happens in the refraction of light? It is a deviation from its original part due to the fact that the light has different speed in different medium. मतलब ये कि एक लाइट की जो स्पीड होती है हर मीडियम में वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जनरली हमको रेनबो जैसे फॉर्मेशन या TIR जैसे फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। ये कुछ फिनोमेना है जो रिफ्रैक्शन बेस्ड होते हैं, और लेंसेज में भी रिफ्रैक्शन हुआ करता है। जो लेंस हम जो यूज करते हैं उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन हुआ करता है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो इन दिस क्लास आई विल डिस्कस the major or one of the important or prominent thing, that is TIR, what is total internal reflection। तो दोस्तों अब मैं आपको TIR के बारे में बताता हूँ। what is TIR? TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली इसके नाम पर अगर हम जाएं तो ये हमें रिफ्लेक्शन लगेगा, बट ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है दोस्तों, ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो TIR कब होता है? TIR की दो नेसेसरी कंडीशन है। एक कंडीशन इसकी ये है कि ये कब होगा? जब व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम आएगी, ये पहली नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तो TIR हो सकता है, मे भी TIR हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? क्रिटिकल एंगल, द इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं, सिंपल सी और सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, ये मान लीजिए ये μ1 है, दिस इज μ2। लेट अस सपोज μ1 ग्रेटर देन μ2। ये μ1 μ2 होता क्या है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो होगा क्या? रे ऑफ लाइट आई यहां से, ये नॉर्मल बना दिया, ये आई है, तो क्या होगा? ये जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये ऐसे नहीं गई लाइट। अब ये डेंसर से, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर गए, तो इसने क्या किया? अपने रास्ते को बदल दिया। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ओके दोस्तों, अब क्या होता है, जब मैं इस एंगल को इंक्रीज करता जाता हूं तो आर भी इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो एक क्रिटिकल कंडीशन आती है जिस पर ये जो लाइट होती है, मतलब एक ऐसा एंगल होता है जिसको हम आईसी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पर ये जो रे ऑफ लाइट होती है वो सरफेस पे चलना शुरू कर देती है, इस तरीके से, इस तरीके से। इस एंगल को नाम देते हैं हम क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे जो आर होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों? 90 डिग्री हो जाती है। तो आईसी क्या होता है? आईसी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो अगर आपका जो इंसिडेंस एंगल हो गया वो अगर आईसी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? लाइट जो है वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, मतलब इस तरीके से लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इसी को नाम देते हैं TIR। ओके दोस्तों, तो TIR एक्चुअली हमें ये इसको इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों पड़ा? ये हमको ऐसा लग रहा है, हमारी आंखों को तो पता नहीं है रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारी आंखों को तो ये लग रहा है कि ये लाइट यहां से पड़ के इधर वापस आ गई। ओके, तो हमें इट अपीयर्स टू बी अ रिफ्लेक्शन। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिफ्लेक्शन होगा, इसके अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। कब? जब ये दोनों कंडीशंस, मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों फुलफिल हो जाएंगी तो आपको TIR देखने को मिलेगा। अब बात आती है आईसी। ये आईसी होता क्या है, इसको निकालेंगे कैसे? तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ ये स्टेट करता है, इसका ये स्टेटमेंट है स्नेल्स लॉ का, कि कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल। ओके, मतलब साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल, जो भी होगा एंगल उसका प्रोडक्ट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब म्यू इनटू sin थीटा में कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस मीडियम के लिए लिखना चाहता हूं, तो इस मीडियम के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखना चाहता हूं, स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ दोस्तों ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका मीडियम का म्यू दैट इज μ1 इनटू साइन ऑफ क्या जो एंगल बना रहा है आई। तो मैं किसके लिए निकालना चाह रहा हूं, मैं इसके लिए निकालना चाह रहा हूं दैट इज साइन आईसी। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, जो कि किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा दूसरे मीडियम के लिए दैट इज μ2 इनटू साइन ऑफ आर। आर कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां से दोस्तों μ1 इनटू साइन आईसी इक्वल्स टू μ2 इनटू साइन 91 हो गया। तो यहां से साइन आईसी की वैल्यू दोस्तों निकल आ गई μ2 बाई μ1। तो यहां से साइन आईसी जो हो गया वो हो गया आपका साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1। ओके दोस्तों, और ये μ2 अपॉन μ1 जो होगा इसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। ओके दोस्तों, सो आप यहां से कंपेयर कर लेंगे, अगर आई जो आईसी से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा TIR आपका होगा। ओके दोस्तों, TIR होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको TIR के बारे में बता दिया कि TIR होता क्या है। TIR एक फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट हमको रिफ्लेक्शन जैसी लगती है, पर वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन बेस्ड होता है। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होगी तो TIR होगा। और उसके साथ साथ वो सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए, मतलब आई जो होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी फिनोमेना को हम TIR बोलते हैं। और इस TIR का जो एप्लीकेशन है ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर हुआ करता है। ओके दोस्तों, तो TIR मैंने आपको आज बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इससे एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगा जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला और आपके काफी इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और काफी आपका मिरर, ये सब बारे में आपको बताऊंगा। लेंसेज के बारे में बताऊंगा, लेंसेज कौन से पर्टिकुलर लेंसेज कहाँ यूज होते हैं, उसकी पावर को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, उसके मीडियम इंसर्ट करने पे उसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको ब्रेक करने पे अगर उसको हम काटते हैं हाथ से या इस तरीके से तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आपके लिए इतना काफी, थैंक यू।